Thank you very much. Now, in this lecture, I will discuss symmetry, pattern, perimeter, area and volume of any object. First, some definition I am giving you. The symmetry. Any shape if equally divided, then it gives the mirror image. It means that one half of the shape is reflection of the other half. This is known as both equal part of the shape is in a symmetrical. Just see देखिए example with a one line symmetry. Just it is the square. If it is equally divided into two parts, first part and second part, and if it just matches square shape, so this is the line of symmetry, and square ABCD is divided into two equal parts. So first part and second part are equal, so you can say that with the line of the symmetry, both are equal. Similarly, in rectangle, this is line of symmetry, one line of the symmetry. That means this rectangle is equally divided in two equal parts. So this is a symmetrical part 1 and part 2. Similarly, circle. This is a diameter vertically divided in two parts. So these two parts are symmetrical to each other. And this is the triangular shape. It is triangular shape means equilateral triangle. And if you just see divide this one, you can say median also. That means middle of this. Then these two parts is also symmetrically divided and with respect to the line of symmetry. So there is one line of the symmetry for square at present, rectangle, circle and equilateral triangle. But there can be also more than one line of symmetry, which I will discuss later on. Just see, symmetry means symmetry and the symmetrical is the same thing. Sometimes symmetry is used, sometimes symmetrical is used. Just see here. Just see slide. A shape, if it moves in a one direction, then it is known as a sliding. Just like sliding door आप करते हैं ना, sliding door करते हैं, sliding from here to the forward direction and backward direction. So if it moves from forward direction, it is called the sliding image. Flip. Flip means mirror image. If this is the mirror, and if you put pencil like this, exactly this is the mirror image. It is also symmetry with respect to the line. Just like N. It is a mirror, it is an image of N from this to this, it is a symmetry with respect to the, so that is called the flip. When mirror is used, flip. Turn. If a shape is turned through an angle with respect to the line of symmetry is known as turn. अब देखिए, this is a triangle, line of symmetry. If it is moved 90 degree, then it is become this shape. 180, this becomes this shape. 270, it becomes this shape. And 360, go to original. That means to come to the original shape, you have to move 360 degree. Of the same image, it is called the turn. First turn, A, B, C, D, and E. It is E, A, and E are original. So you can say the first turn, second turn, third turn, fourth turn. Pattern. Pattern means any shape, system of the shape is repeated many times. Just like see, circle, triangle, circle, square. This is the first time. Once it is repeated, second time, third time, and so on. So you can say that it is a pattern of triangle, single, and square. Similarly, mathematical. All the table has some pattern. Just like 2 1 is 2, 2 2 is 4, 6, 8, 10. अब देखिएगा 2 क्या है 2 है सेकेंड टर्म 2 + 2 थर्ड टर्म 2 + 2 + 2 2 + 2 4 this has some pattern of increasing every digit by 2 numbers. It gives a pattern. Similarly 10 20 30 it also has the same pattern. So that is the basic difference between the symmetry, slide, flip, turn and pattern.
अब यहां देखिए, ये आपको ये भी पैटर्न देगा जो क्या है, अब देखिए 1 into 8 plus 1 is equal to 9, जैसे फिर 1 to 12 into 8 plus 2 is equal to 98, 1 to 3 8 plus 3, अब देखिए यहां पर 1 है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, but 8 is coming after 1 2 3 4 5 will come, 9 is the same, 8 7 6, so this shows it is a pattern. अब क्या है ये, अब देखिए यहां पर ये डिक्रीजिंग है, यहां पर सेम है, यहां पर इंक्रीजिंग है, यहां पर डिक्रीजिंग है. अब देखिए डिक्रीजिंग बाई 1, सेम डिजिट 8, नो प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग बाई 1 है, डिक्रीजिंग बाई 1 ऑल्सो. सो अब ये क्या हुआ, ये ट्रेंड रिपीटेड, ट्रेंड डिक्रीजिंग, सेम थिंग रिपीटेड, हियर इंक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो ट्रेंड, इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग ट्रेंड. अब यहां देखिए सेम थिंग, it is increasing decreasing, here this side increasing, this side decreasing. अब यहाँ पर क्या है कि इसको आप डिक्रीजिंग लिखे तो इधर इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो, ट्रेंड कह सकते हैं. उसी तरह से यहाँ पर इंक्रीजिंग, इधर जाएगा तो डिक्रीजिंग, सेम. अब यहाँ 2 के बाद ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग 10 by 1 फ्रॉम 2 हो रहा है, यहाँ पर फ्रॉम 1 हो रहा है. फिर ये देखिए रिपीटेड 1, मैंने 1 1 1 1 इसे रिपीट हुआ 2 नंबर्स. अब देखिए क्वेश्चन है, आई हैव ऑलरेडी शोन, टर्न दिस थ्रू 90 180 270 360 इन द क्लॉकवाइज विद रेफरेंस टू द लाइन ऑफ द सिमेट्री. अब इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं, वन कैन वेरी इजीली. अब यहां देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 जा रहा है, यहाँ पर 1 2 1 3 1 4 1 5 1. अब यहाँ देखिए 1 1 1, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 2 2 3 3 2 2 1 1. आप इसी तरह से आप ट्रेंड दिखा सकते हैं जो. अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 1 1 जा 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 को 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 3 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25. दिस गिव्स अ पैटर्न. अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 जा रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 जा रहा है, यहाँ पर आप उसी का उसका प्रोडक्ट जा रहा है. अब देखिए वार्म अप पेरीमीटर. पेरीमीटर इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाउंड्री. ए बी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए is the total distance which is covering a space, and the total distance is known as the perimeter. Outer ring, outer boundary. Rectangular outer boundary is this, circle is this, triangle is this. But अब जरा देखिएगा आउटर बाउंड्री ABCD, यहाँ पर रेक्टेंगल में आउटर बाउंड्री ABCD, आउटर बाउंड्री ABC. अब एक चीज यहाँ देखिएगा कि पाई इज इक्वल टू 12/7 होता है, यहाँ पर लड़कों को बता दीजिए इज इक्वल टू 3.14 होता है, ये भी बता दीजिए और कहिए कि ये मानो कि ये होता है. देन ट्रायंगल का पेरीमीटर समझ में आएगा, ट्रायंगल का एरिया समझ में आएगा. अब देखिए फार्मूला फॉर पेरीमीटर, स्क्वायर का देखिए AB BC CD, ये आप सभी साइड्स बराबर हैं तो साइड्स को 4 टाइम्स जोड़ेंगे तो 4 इंटू ए हो जाएगा. आप फार्मूला को याद करें 4 इंटू साइड. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होता है, यहाँ पर देखिए 2L प्लस 2B हो जाएगा, 2 का मतलब L प्लस B हो जाएगा. तो इसको जनरली जो लेंथ प्लस ब्रेथ आपको लिखना चाहिए फार्मूला में. इसका मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. अब देखिए सर्किल में क्या है, अगर ये लड़कों को नहीं पता होगा तो क्लास 5 में पेरीमीटर नहीं बताया गया है. बट आई थिंक दैट आई शुड टेल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई विल प्रूफ इन द हायर क्लासेस. सो 2 पाई आर, इफ पाई इज नोन, रेडियस इज नोन, वी कैन फाइंड आउट पेरीमीटर. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर द सेम, तो 3 इंटू L. तो यहां पर भी आपको लिखना चाहिए 3 इंटू साइड. That is very very important.
इन वर्ड्स द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे देखिए एल है और यहाँ पर भी एल है, तो लेंथ से कंफ्यूज कर जाएंगे जो है। सो ये ध्यान रखना चाहिए कि लड़कों को, 5th क्लास के लड़कों को 4 इंटू साइड बताना चाहिए, फिर 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ बताना चाहिए, फिर यहाँ पर 2 पाई इंटू आर रेडियस बताना चाहिए और 3 इंटू साइड बताना चाहिए। ये जस्ट प्रिकॉशंस आई एम गिविंग यू। अब देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सब डिस्टेंस दिया हुआ है, आप इसको ऐड करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। हियर लाइन ऑफ सिमेट्री इज 1, so you have to, if line of symmetry is given, that means suppose left hand side is equal to right hand side, and just solve this problem. There is no question of giving the wrong. Side is 3 centimeter, 4 into 3. अब ये फार्मूला लगा दीजिए, आंसर पा जाएंगे जो आप। अब देखिए एरिया क्या होता है। इट इज द टोटल सरफेस कवर्ड बाय इट्स आउटर बाउंड्री, दैट मीन्स कवर एरिया इज दिस लाइन 1। अब इधर कैसे निकालेंगे? द फार्मूला, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, they should remember it. How it is coming, we can see later on. Side into side is equal to side square. The student should tell here not square, side into side. Yes, square होता है, बता दीजिए। Length into breadth, L into B. Area pi r square, pi is this, r known, so you can find out area. अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, example 2. Find the area of the square, 4 into side. Find the area of the parameter given in the question 1. You can find out. Question 6. अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जितने स्क्वायर रूप में है, इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अ स्टूडेंट हैज टू ओनली काउंट हाउ मेनी स्क्वायर इज देयर और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे वो। तो 1 2 3 4, 4 इधर है, 1 2 3 4, 4 4 जा 16। तो ये जरा स्टूडेंट को बताना चाहिए कि 4 स्क्वायर है और 4 रो में है, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आपका बड़े आराम से जो है 16 स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए काउंट कर लीजिए, यहाँ 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो 3 5 जा, ये आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर बता सकते हैं काउंट करके जो है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इट इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे ये बिल्डिंग है, ये रूम है, ये कुबाड़ है। अब क्यूब ऑल साइड्स आर सेम, कुबाड़ अपोजिट साइड्स आर सेम, सिलेंड्रिकल शेप एंड 2 सर्किल स्पेस, कोन एंड स्फीयर। अब देखिए फार्मूला मैं सबका बता दे रहा हूं। फार्मूला बेसिकली क्या होता है? फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर है पता है, रेक्टेंगल है पता है, सर्किल है पता है, तो ये आप निकाल सकते हैं। और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और आइटम। अब देखिए क्यूब का क्या होगा? क्यूब की बेस एरिया साइड इंटू साइड और हाइट भी क्या है? साइड है। एनीवे क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है, सिलिंड्रिकल पाई आर स्क्वायर। इन तीनों में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड क्यूब, because in cube all sides are equal. Cuboid length into breadth into height, so L into B into H. Cylinder pi I square into I, pi square H. This formula cylinder is not in class 5, but I have given because the circle perimeter, circle area, suppose they should know. So in higher classes if they give, they will understand. Now, just see, this is the figure. ये क्यूब है, ऑल साइड्स आर सेम, क्यूबाइड अपोजिट साइड्स आर सेम, दिस इज द सिलेंड्रिकल। तो मैंने एग्जांपल लेकर दिया है कि इसकी 2 सेंटीमीटर एरिया है, लेंथ है, तो क्या होगा? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऑल मल्टीप्लाइड। ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, और सेंटीमीटर बेस है। इफ बेस आर सेम, पावर इज एडेड, सो यू कैन गेट दिस वन। सिमिलरली क्यूबाइड length into breadth into height, just see pi square h
अब देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम ट्राई किया है सिमेट्रिकल बनाने के लिए। अब इसको पता करना है कि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है, हमने जस्ट 3 डायमेंशनल बनाया है। तो इसमें देखिए इस साइड में क्या 1 2 2 है, 1 2 3 4 5, इधर 5 है, तो कितना हो गया 5 2 जा 10, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5, 6 5 जा 30, वहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यहाँ पर 4 है, 8 4 जा 32, और यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।